सो मैं हूँ ऋषभ और पुरस्कार के इस एपिसोड में हमारे साथ प्रफुल्ल निकम सर हैं। सर वाइट फूड डी फाउंडेशन के फाउंडर हैं और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हैं। सर नारी और बाल सशक्तिकरण पे कार्य कर रहे हैं हमारे देश में। वेरी वेलकम टू यू सर। वी आर प्रिविलेज टू हैव यू इन आवर पॉडकास्ट। Yeah, thank you, Rishabh, for inviting me here. So, sir, firstly, a bachelor's degree in electrical, electronics, and communication engineering, then a master's in NGO management, and finally a doctorate degree. Your academic journey sounds super exciting. Our audience would be curious to hear from you about your journey since your early days in school. Yeah. See, I come from a very struggling background. My parent was not very well to do. So education was the only tool which elevates you actually. When initial day, I was very clear ki, how I can get my career basically. And engineering, I think, is the easiest way to build your career. And that's where I joined the electronics and telecommunication engineering. And after that, I got into software and I was doing good. Now, once I was doing good, obvious extension because I came from a struggling background, my thought process was how I can contribute to society basically. And that's where I started this organization called Y40 Foundation. When I was working with Y40 Foundation, I realized even though my passion lies there, but anything you do is more practical and more structured approach actually. And that's where I started getting my MBA into NGO management because I was heading the NGO, which was a growing NGO. So my ultimate goal was to learn some theoretical parts so that those things can be applied. Once I done my MBA, now organization is growing. My goal was to get into expertise of few things, and that's where I taken the admission. I'm pursuing PhD into, and my most probably I will do my subject also on skilling, so that the work which we are doing is not only practically applicable, but theoretical parts are taken care, and there is a deep study of that, and that's how my journey is going. I always consider education as a tool, and we need to use it like a tool rather than just taking degrees. Those education aspects should be applicable to our life and making our own life and others' life better. And I think that's why everybody need to plan their education. जी सर। सर एनजीओ मैनेजमेंट शायद ये एक नया और अनूठा विषय है मैनेजमेंट के फील्ड में। Have there been any incidents or events in your life that have inspired you to choose this topic or pursue this field? I work with the Education Ministry of India and especially in AICT. And basic problem in India is that what we are teaching to student may not be applicable into life or into basically your careers. Now, as our economy is growing, careers are becoming a lot dynamic. So that's where when I go, and most of the people now, if you see that there are surveys that MBAs are not employable. And reason is that what is happening, graduates are getting into MBA directly without understanding what is the expertise they need into their career. MBA is more about expertise into career basically. So that's where I done I done my graduation in 2004, but I done my MBA recently around 2022. I done my MBA was 22, 23. I done my MBA. So when I was getting into NGO, I was day to day facing few problems basically, especially management level problem, how to manage NGOs, how to manage the different aspects of NGO. And that's where I got this, done the MBA into NGO management so that I know all nitty-gritties of how NGO can be managed. And I think other people also need to choose the career or choose the education stream which will build their careers rather than taking some degrees basically. सर कुछ समय पहले तक ऐसा था कि मतलब करियर के कुछ पारंपरिक ऑप्शंस ही हुआ करते थे। जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज आदि। पर अब लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है, कहीं ना कहीं ये मॉब मेंटेलिटी है वो कम हुई है। लोग ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस को छोड़कर दूसरे करियर ऑप्शंस की तरफ पे जा रहे हैं। इस पर आपका क्या नहीं जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी ग्रो होगी, इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी, सो वी वेयर लाइक नाउ अराउंड आई थिंक 3.5 ट्रिलियन, वी आर टारगेटिंग 5 ट्रिलियन। अगर आप देखते हो तो हमारा इकोनॉमी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। वंस इकोनॉमी ग्रो, लॉट ऑफ एवेन्यूज ओपन एक्चुअली। अगर आप 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी को पूछते कि एनजीओ इज अ करियर, तो एनजीओ करियर कोई मानता नहीं था। सेम आपका डेटा साइंटिस्ट है, लॉट ऑफ करियर्स आर कमिंग एक्चुअली। इवन इफ यू सी इनटू पॉलिटिक्स, नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्सपर्ट्स basically. And as economy grows, people will expect more and more expert to be coming in picture. जैसे डॉक्टर्स का आप देखेंगे तो अब जनरल फिजिशियन वाज एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस एक्चुअली।
बट नाउ इट इज डजंट वर्क कि आप जनरल फिजिशियन हो, आपको एमडी करना है, एमएस करना है, देन यू नीड लॉट ऑफ अदर थिंग। आई थिंक इसीलिए जो नए नए करियर्स आ रहे हैं, आई थिंक पीपल नीड टू लुक इनटू इट एंड गेट, बिकॉज जनरली न्यू करियर्स हैज मोर मनी एंड मोर एक्चुअली एस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग। क्योंकि जो भी एक नया करियर शुरू होगा उसका लाइफ साइकिल अगर हम 15-20 साल भी पकड़ते हैं, तो दैट मीन्स अ पर्सन कैन गेट इनटू न्यू करियर एंड सर्वाइव फॉर दैट। विद टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज चेंजिंग। जैसे पहले ये होता था कि इफ यू वांट टू वर्क समथिंग यू नीड टू गो टू ऑफिस, बट अभी बहुत सारे करियर ऑप्शन है, जैसे आप कंटेंट राइटिंग पकड़ लीजिए या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस आर देयर जहां पे आपको जरूरी नहीं आपको फील्ड पे जाने की जरूरत है। एंड विथ एवरीथिंग टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, आई वर्क विथ वन ऑफ द बिग मैन्युफैक्चरर, दे आर द डोनर्स। सो पहले ऐसा होता था कि देयर एवरीबॉडी वाज इनटू प्लांट एंड वर्किंग इनटू मशीन्स। नाउ उनका मशीन्स आर मैनेज्ड बाय रोबोट्स, एंड जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपने घर पे बैठ के या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के दे कैन मॉनिटर दैट मशीन, रन दोज मशीन। तो इससे बिल्कुल। करियर के नए ऑप्शंस आएंगे। एज इकोनॉमिक ग्रो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे बेसिकली। और हमने उसमें देखना भी चाहिए। और आई थिंक इट्स नॉट ओनली कि आप जब इन जॉब मतलब एजुकेशन कर रहे हैं तभी सोचे, बट वंस यू आर इनटू करियर, सपोज यू आर इनटू सॉफ्टवेयर करियर, यू आर इनटू ऑलरेडी इनटू 5 इयर्स, तो आपको सोचना चाहिए कि व्हाट इज द न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग। आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। एंड आई थिंक न्यू करियर ऑप्शन आर गुड, बिकॉज वन यू दे आर मोर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, देयर विल लॉट ऑफ मनी इज देयर। एंड सेकंड थिंग, जैसे आप जानते हो सिविल सर्विसेज है या गवर्नमेंट जॉब से, दे आर श्रिंकिंग एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, बट गवर्नमेंट जॉब श्रिंक होंगे। और इट्स नॉट इंडिया, वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट जॉब श्रिंक हो रहे हैं, बिकॉज इंडीड नो सर। बडी वॉन्ट टू पुट, गवर्नमेंट डजंट वांट टू पुट दैट काइंड ऑफ मनी। तो इसलिए एवरीबडी नीड टू थिंक ऑफ दिस ऑप्शन, बिकॉज दे विल वर्क पार्ट टाइम, फुल टाइम, ऑल यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शन एंड यू कैन बिल्ड योर करियर बेसिकली। So, sir, is it possible for someone to consider NGO as a career options, since there are many NGO at international and national level that offers attractive pay scale for various posts? Thus, can we see NGO as an amalgamation of passion and profession? See, there is a saying actually, passion gives you the basically kick or fun, or you can say yeah, engagement. Then why you need money basically? Now, merging passion with the job is many time a difficult task. The reason is that generally jobs are boring, passion is very exciting basically. Indeed, Okay, so sir. jobs you need to do something which people need, which market need. Whereas passion you can do anything. So as simple as that, if you are a singer, suppose, and you are singing for only for passion basically, so you will sing what you like basically. But same way, if you are a professional singer, you need to sing something which is people will need. So that's where I think many time it's easy to merge your passion with the yeah, and especially people go to NGO sector. Now NGO sector has multiple part. One, people look NGO sector more as a volunteering aspect basically. So when your volunteering aspect or you that kind of aspects are there, it's very difficult to build your career. But if you go to the core task of NGO, like you are the project management is there, then your fundraisings are there, marketing is there, media management is there, legal of NGO. If you get into स्पेशली एनजीओ को थोड़ा चैरिटी टाइप या हम डोनेट मतलब हम डोनेशन टाइप कंसिडर करते हैं कि वी आर basically giving something free to somebody and we consider that as charity. Now NGOs has a very different role. They are development agencies basically. तो इंडिया में धीरे धीरे करियर ऑप्शंस आर मोर एंड मोर बिकमिंग स्ट्रेंथनिंग इनटू एनजीओ सेक्टर, स्पेशली विद द सीएसआर स्पेंडिंग जो बढ़ते जा रहा है, करंटली इट्स 10 करोड़। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सीएसआर स्पेंड बढ़ेगा तो एनजीओ विल बी गुड एस्पेक्ट। बट आई थिंक एनजीओ यू नीड टू लुक लेस लाइक अ पैशन बट मोर लाइक अ करियर एक्चुअली ऑप्शन, वेयर यू कैन चूज वन पाथ। जैसे आप प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हो, आप थीमेटिक एरियाज में एक्सपर्ट बन सकते हो, लाइक यू आर एक्सपर्ट इनटू प्लांटेशन, सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट, or you can get expert into fundraising kind of thing. If you to get into those, then it's a good career. But if you only look like, okay, I want to do a social change and I want to be a volunteer, then you get stuck between what I want to do. I want to do something very exciting rather than day to day as a career. So if you want to do like a volunteering, then I think it's better you get into some other career and do continue to operate, contribute to society as a volunteer. But if you're considering NGO where you want to earn and again do the social work, then I think you need to take a practical approach where the you choose need to something sector where you will grow basically. Because with time it cannot be that way you will do one activity and after 2 years, 3 years you will get higher salary. So that's why it's a good option. And I think in the coming year, 5 year, 10 year, so it's a very simple formula. As your economy will grow,
people will want to contribute more to society, corporates will want to contribute more to society, and CSR law mandate people to contribute to more to society. But when you come only because of passion and you don't have that kind of tools or that kind of education background, or you don't want to build that kind of expertise, then you struggle in long term. But if you build those aspects of your career, then I think it's a good career and you can flourish into sector. Indeed, sir. Sir, you are working for the underprivileged, and a large part of whom are women. While patriarchy obviously exploited women, has it also hindered men's potential growth or burdened them with more responsibilities indirectly? See, and we can now easily analyze society as a patriotic or some yeah, basically. But hota kya, the problem was if you look after 10, 15, 20 years back, resources nahi the. So people don't have resources. Father doesn't have resources. Now, जब आपके पास father के पास resources नहीं होंगे, तो what father will do or family will do? They will choose somebody which will support their ये basically family. तो जनरली तब क्या होता है, बिकॉज रिसोर्सेज नहीं थे, गवर्नमेंट एवेन्यू नहीं थे, तो आपने लड़कों को पढ़ाया, और लड़कों को पढ़ाया तो ऑब्वियसली योर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई फ्रॉम बॉयज बेसिकली. सो इसका डुअल इम्पैक्ट हुआ, यू किल्ड द एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप. आपने मोर एंड मोर लोगों को जॉब ओरिएंटेड कर दिया बेसिकली. सो पीपल स्टार्टेड गेटिंग टू करियर, वेदर इट्स गर्ल्स और बॉयज, बोथ स्टार्टेड गेटिंग इनटू करियर because they had कि अर्निंग करना है, they didn't have a passion for their jobs actually, and that's completely killed our complete education system. Or ये now as economy is growing, I think people will have more money in pockets. They will spend that more money on both their, whether a daughter or a son. No, I like take my example. I have only one daughter actually, so I cannot buy forget on whom I will spend. So that's where the things will change slowly. Few things change with time, and few will need to change mentality. Both I will say parent mentality as well as your girls or boys mentality. Okay, it is they are everybody is an equal partner in society basically. Now there can be roles everybody plays, and I think that money lack and complete society was thinking more about we were like a more socialist or society basically, rather than thinking about money and growth. We were thinking about how to survive or how to at least get. That's where I think government job very popular. Now as more economy will come, fathers will have more economy, so they will give more their children freedom to choose, I think. And in long term it will those issues, some of the societal issues will be taken care basically. श्योर थिंग सर. सर, कुछ जीवन के सूत्र, लाइफ फॉर्मूलाज, मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो आप दर्शकों के साथ और छात्रों के साथ शेयर करना चाहें. या मैं ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सी सक्सेस डजंट हैव फार्मूला, बट देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स एक्चुअली व्हिच मेक एनीबॉडी सक्सेस. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि रादर देन टैलेंटेड पर्सन, अ डम एंड कंसिस्टेंट पर्सन हैज द बेटर चांसेस टू गेट सक्सीड. सो बेसिकली क्या है, व्हेन यू आर इन अ स्टूडेंट और एनी फेज ऑफ लाइफ, यू नीड टू थिंक कि आप अगले 5 या 10 साल क्या करने वाले हो, रादर देन थिंकिंग, क्योंकि देयर इज नो मिरेकल. आप कुछ भी कर लीजिए, सक्सेस विल गेट आफ्टर यू 4, 5, 10 years, आपको सक्सेस मिलेगा. अगर आज आप एक पेड़ भी लगाते हो, जैसे पुराने जमाने में बोला जाता था कि अगर आप आम का पेड़ लगा रहे हो तो आप अपने बच्चों के नहीं, अपने पोतों के लिए लगा रहे हो बेसिकली. सो आम आपके पोते खाएंगे. सो सेम गो इनटू योर करियर. इफ यू हैव टू डू समथिंग, जस्ट थिंक अबाउट कि वेदर यू विल कंटिन्यू दैट आफ्टर 5 or 10 years. कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप कुछ भी करो, अगर आप एक पत्थर पे भी पानी गिराते जाओगे तो बेटर है वो पत्थर को भी तोड़ देगा बेसिकली. तो दैट विल क्रिएट अ डिप बाय डिप, ये होता है. सो यू नीड अ कंसिस्टेंसी. यू डू व्हाट मे बी वांट टू डू इन लाइफ, डू कंसिस्टेंसी. जैसे हमारे एक टीचर थे, वो बोलते थे कि जनरली आपका ग्राफ होता है ना, वैसे एग्जाम के पहले से ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है. तो अगर आप कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा भी स्टडी करते हो डेली, तो आपको एग्जाम के टाइम बेटर रिजल्ट्स आते हैं. सेम लाइफ इज लाइक एग्जाम. अगर आप डेली थोड़ा स्टडी करोगे, थोड़ा प्रिपरेशन करोगे किसी भी चीज का, चाहे करियर का है, किसी स्किल का, अगर आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करोगे, तो देयर इज आई एम डैम श्योर 99% यू विल गेट सक्सेस. सो फर्स्ट कंसिस्टेंसी यू नीड. देन आपको सेकंड थिंग होता है, कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा आपको अवेयरनेस चाहिए. बिकॉज विद टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन, हर एक के पास गूगल है, चैट जीपीटी है, नॉलेज इज इजीली अवेलेबल. नाउ क्वेश्चन इज वेदर यू वांट टू ग्रैब दैट नॉलेज. ओके. एंड थर्ड होता है खुद का ब्रांड बिल्डिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इफ यू आर गोइंग टू समवेयर, सपोज देयर इज अ सेइंग, इफ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट बेसिकली. सो सपोज योर कॉलेज टाइम इज 10 o'clock एंड इवन यू आर रीचिंग 10 o'clock, तो आपको कॉलेज पहुंचते पहुंचते घर मतलब अंदर पहुंचते पहुंचते आप 10 to 10:03 को पहुंचोगे. If you are daily coming 1 or 2 minutes late, it will create your image that you are not a very serious person basically. Now people may say कि अगर मैं 10:01 को पहुंच रहा हूँ टीचर को, मैं 10:02, तो what it matters.
actually that 1 minute doesn't matter, but it creates your image actually, and people doesn't take you seriously. Now, a lot of people success come because other people take them seriously. So it's very important that you consistently brand your brand, that you are reliable, you give the results, and if you make work on two three things, I think success is easier to get basically. Indeed, sir. Our pace may be slow, but we have to be consistent. Exactly, exactly. सर कुछ मतलब दो या एक कुछ ऐसी किताबें जिनका नाम आप अपने दर्शकों से शेयर करना चाहें जो आपके दिल के बहुत करीब हैं या जिन किताबों ने आपको प्रेरित किया हो। मैं बेसिकली स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा फैन हूँ। रीजन इसलिए है कि मैंने बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी ने वो बातें कही थी 1880s के दरम्यान या 1890s के दरम्यान बेसिकली, जो हम आज करते हैं बेसिकली। तब वो बोलते थे कि इंडिया कैसा होना चाहिए, बेसिकली भारत कैसा होना चाहिए, भारत के युवाओं ने क्या करना चाहिए। सो आई एम बिग फैन ऑफ स्वामी विवेकानंद। बट अदर देन दैट मैं दो छोटी बुक्स है वो रिकमेंड करूंगा सबको, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। हु मूड माई चीज करके एक छोटी सी बुक है। जी। क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजिंग चेंजेस। आपका लाइफ चेंज होते रहता है, जब आप कॉलेज से बाहर जाते हो थिंग्स चेंज। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बुक, आप रीड कर सकते हो, और बहुत छोटी बुक है, सस्ते में मिलती है। तो वो मूड माई चीज इज अ वेरी गुड बुक ये। और अगर आप जॉब में जा रहे हो, खासकर आप मैनेजर पोजीशन पे जा रहे हो, तो 1 मिनट मैनेजर इज अनदर गुड बुक एक्चुअली, जो मुझे पसंद आई थी, कि हाउ यू डील विद अपने अराउंड के लोग, अपने चाहे कलीग्स हो या उनके साथ। सो दीज टू बुक्स। बाकी आप स्वामी विवेकानंद को रीड कीजिए। आप रीड कुछ भी कर सकते हैं, आई थिंक रादर देन नाउ बुक्स, योर यूट्यूब इज अ गुड ऑप्शन। आप छोटे छोटे वीडियोस देख सकते हो। जैसे आप करियर को अगर बिल्डअप करना चाहते हो तो स्टीव जॉब्स के वीडियोस आप देख सकते हो, स्मॉलर वीडियोस बेसिकली। फिर टेड टॉक्स भी अच्छे होते हैं, स्पेसिफिक अगर टॉपिक आप कुछ ढूंढ रहे हो। जैसे आपने सक्सेस बोला, एक देयर इज आई एम फॉरगेट हिज नेम, बट वो उसका एक टेड टॉक्स है। वो 4 मिनट का टेड टॉक्स है, बट ही टॉक्स अबाउट 8 थिंग्स, एंड कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द थिंग बेसिकली। सो देर आर फ्यू, ये आपने पढ़ते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। और दूसरा, आई थिंक जब भी आप लाइफ में किसी सिचुएशन में हो, चाहे पॉजिटिव है निगेटिव है, आपका रोल है, तो उसके अराउंड की चीजें देखते रहिए थोड़ा। दैट गिव्स यू न्यू आइडिया, मोटिवेट्स यू, एंड देन यू कैन गो अहेड बेसिकली। सर एक प्रश्न है जो बहुत सारे मंचों से उठाया जा रहा है, अगर बात नोबेल प्राइज की भी हो, कि भारत में एक स्टैंडर्ड और साइंटिफिक अप्रोच की और इन्वायरमेंट की कमी है। आपके इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है? सी, मैं पर्सनली मानता हूँ कि कोई भी सोसाइटी में टैलेंट का कमी नहीं होता है। ठीक है, यू गो टू एनी कंट्री, एनी सोसाइटी, एनी ग्रुप ऑफ पीपल, टैलेंट का कभी कमी नहीं होता है। टैलेंट क्या है बेसिकली? सो एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, जब इंडिया में इकोनॉमी वीक था तो हमारा ओलंपिक में भी ओलंपिक मेडल्स कम आता था, या जी। क्रिकेट में भी वी वर वीक। नाउ सडनली ऐसा क्या हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम इज बिकमिंग वेरी गुड एक्चुअली, या सडनली हमारे ओलंपिक्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो इकोनॉमी प्लेज अ बिग रोल। क्योंकि जनरली क्या होता है, मान लीजिए देर आर 100 स्टूडेंट इन अ क्लास। सो जनरली क्या होता है कि 10 आर वेरी स्मार्ट, 10 आर डम, और यू से कि नॉट फिट फॉर, but 80 are normal student. Now this normal student need a actually environment to grow. So it's like now there are 80 people who are normal. If they get an environment, they will do good, very very good. So I think once we need to create that environment. So saying that कि हमें नोबेल के ये नहीं है, that is the wrong thinking. हमारे पास टैलेंट है, बट हमारे को इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे स्पोर्ट्स के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, वैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक स्टडीज के लिए हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या है कि बिकॉज वी आर वेरी बिग कंट्री, इवन दो हमारा इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, स्टिल रिसोर्सेज आर लेस एक्चुअली। जब आपके पास रिसोर्सेज लेस होता है तो हर पेरेंट सोचता है कि बच्चे को पहले जॉब लगे। ही डजंट थिंक, और या बच्चा भी सोचता है कि मेरे को जॉब लगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज पहले अपना लाइफ बिल्ड होना होता है, फिर दुनिया बिल्ड अप करते हो। अब इस इन्वायरमेंट में क्या होता है, यू डोंट थिंक मच अबाउट इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप या आईपी, इसके बारे में आप ज्यादा सोचते नहीं हो। तो स्लोली हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट के बीच में, पेरेंट्स के बीच में भी, कि ओके फेलियर इज एक्सेप्टेबल। अब सडनली क्या है कि वी हाउ वी मेजर द सक्सेस, बेसिकली हम सक्सेस मेजर करते हैं, 100 स्टूडेंट इन अ क्लास, हाउ मेनी आर दे गेटिंग जॉब आफ्टर दे गेट पास आउट एक्चुअली। So how many are they getting a campus placement? If they are not getting campus placement, we are thinking they are failed actually. Okay. So our parameter of success as a society are very different than the compared to Western societies. So जब आपके पैरामीटर शॉर्ट टर्म सक्सेस के है एज अ सोसाइटी, तो होता क्या है कि देन जॉब बिकम लुक्रेटिव देन रनिंग बिहाइंड इन सम आईपी और समथिंग। और आप एक लॉन्ग, आप नोबेल इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, बट आप शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में देखिए, अगर एक कॉलेज से पास आउट हो रहे 100 बच्चे, तो हाउ मेनी आर देयर ट्राइंग टू गेट इनटू सम आईपी क्रिएशन, पेटेंट फाइलिंग, और इवन साइंटिस्ट एज अ। और साइंटिस्ट हमारे इधर क्या हुआ, बिकॉज वी वर टू डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर इनोवेशन,
हमारा साइंटिस्ट बिकम अ जॉब एक्चुअली अदर देन समथिंग डूइंग। आई थिंक अच्छा। एज अ एजुकेशन लेवल पे जैसे दिस गवर्नमेंट हैज कम अप विद फ्यू न्यू पॉलिसीज, और मैं आई वाज पार्ट ऑफ दोस पॉलिसीज, सो आई नो वेरी क्लियरली। जैसे कि इंटर्नशिप पॉलिसी आया मैंडेटरी, तो आपका मैंडेटरी इंटर्नशिप हो गया, मतलब जॉब आपका एजुकेशन इज नॉट थ्योरेटिकल, इट इज गेटिंग समथिंग प्रैक्टिकल। फिर आपका एक रैंकिंग आया था, अरिया करके एक रैंकिंग आया था, अटल इनोवेशन रैंकिंग बेसिक कॉलेज का। सो वी सेट कि कॉलेजेस वी विल नॉट रैंक कॉलेज कि उनके पास टीचर कितने हैं, उनके पास स्टूडेंट कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। विल रैंक कॉलेजेस डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मच इनोवेशन यू आर डूइंग। एंड देन थर्ड, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन खासकर सॉफ्टवेयर के बच्चों के लिए था, कि यू गो एंड डू समथिंग फॉर ये मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढिए एंड देन यू मार्केट इट। सो दिस इज द स्लो प्रोसेस। आई थिंक वी आर वेकिंग अप, इंडिया एज अ कंट्री हम अभी जाग रहे हैं। अभी तक तुम सोए हुए थे, तो वी आर वेकिंग अप स्लोली। जैसे जैसे आपका मिडिल क्लास बढ़ेगा, आपका इकोनॉमी बढ़ेगा, देयर इज अ बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज। और जब पेरेंट के पास पैसा होगा सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन टू पीपल, बिकॉज गवर्नमेंट कैनॉट डू एनीथिंग एक्चुअली। हम चाहे कितना बोलते रहे गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट का इस रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट कैन मेक द पॉलिसीज, बट जनरली वी नीड टू स्टैंड फॉर अवर सेल्फ। हमारे बच्चों के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एंड आई थिंक देन डाउन द लाइन अगेंस्ट आई थिंक इट विल टेक 10 to 15 years, बिकॉज टैलेंट देयर इज नो कमी हमारे पास इंडिया में, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बट विल नीड टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट सो दैट टैलेंट फ्लरिश देयर एक्चुअली। जब वो आपका इन्वायरमेंट होगा, फ्लरिश होगा, तब ऑटोमेटिकली देन यू विल गेट द सक्सेस। आईपीएल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जब आपने एवेन्यूज क्रिएट कर दे कि टैलेंटेड कोई भी आके अपना खेल दिखा सकता है, पैसा अर्न कर सकता है, तो सडनली आईपीएल में जितने लोग तैयार होने लगे, नाउ दे आर परफॉर्मिंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो इसी तरह से साइंस में भी होगा। बट आई थिंक इट विल टेक 10 15 more years, एंड देन आई थिंक थोड़ा जो वेस्टर्न से हम ईस्टर्न शिफ्ट हो रहे हैं, चाइना इंडिया तो शिफ्ट हो रहा है इधर, तो आई थिंक दैट टाइम विल बी इनटू नेशनल इंटरनेशनल स्टेज, जहाँ पे हमें नोबेल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा बेसिकली। सर 5G के साथ साथ ये अवसाद मतलब डिप्रेशन और अकेलेपन का भी दौर है, तो ऐसा कुछ मेंटल टिप्स जो आप देना चाहेंगे कंसिस्टेंसी बेटर परफॉर्मेंस के लिए, और इनमें से कुछ स्टेप्स ऐसे भी हैं जिन्हें क्या बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन में शामिल किया जा सकता है। सी क्या है ना कि वी वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग एजुकेशन इन अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। हमारा बेसिक प्रॉब्लम है कि क्योंकि सालों से हम जब बड़ा कंट्री है, तो वी टॉक मोर अबाउट नंबर देन क्वालिटी एक्चुअली, क्योंकि हमें ज्यादा लोगों को पढ़ाना है। तो हमने क्या किया, एजुकेशन को बेसिकली रादर देन अ टूल फॉर सक्सेस, हमने एक मैंडेटरी डिग्री प्रिंटिंग का मशीन बना दिया। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, बिकॉज योर एजुकेशन वाज अ मैंडेटरी डिग्री मेकिंग मशीन था, तो हमने सबको एक ही सांचे में ढालने की कोशिश की। ओके, तो आई थिंक वी नीड टू गेट इनटू मोर एंड मोर प्रैक्टिकल एजुकेशन, एंड वी नीड टू ट्राई डिफरेंट टूल्स बेसिकली। जैसे देर आर वेरियस एजुकेशनल मॉडल्स होते हैं, जैसे डूइंग बाय, आप लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हो। तो दिस इज, हमें बच्चों के साथ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा और थोड़ा उनको फ्रीडम देना पड़ेगा। अभी ये प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है, बट आई थिंक वी नीड टू गवर्नमेंट आल्सो विल नीड टू गिव द फ्रीडम टू द प्रिंसिपल्स एंड टीचर, कि नए कुछ टूल्स यूज करें। जैसे एग्जांपल है, अगर आप मान लीजिए एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हो, तो रादर देन एनिमल्स के बारे में पढ़ाने की वजह अगर उसको आप जू ले जाते हो, तो आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड बेटर। फिर आपका डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल करना पड़ेगा, जहाँ पे यू नीड टू शो सम वीडियोस में, जैसे आप शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा रहे, या आपके जैसे किसी भी गांधी जी के बारे में पढ़ा रहे, किसी के बारे में पढ़ा रहे, रादर देन बुक में उनको पढ़ाने के वजह इफ आई शो अ वीडियो बेसिकली या मूवी, तो दैट इज द बेटर बेसिकली। आई थिंक वो थोड़े चेंजेस हमें करने पड़ेंगे सो दैट एजुकेशन बिकम मोर प्रैक्टिकल। सेकंड थिंग क्या है कि हम जब मनी सिखा रहे हैं बच्चों को, एग्जाम्पल हम पैसे का कुछ सिखा रहे हैं, अगर हम एक दुकान पे उसको एक दिन के लिए बैठाते हैं, हाँ, तो ही विल लर्न बेटर वे एक्चुअली, चाहे वो एडिशन है सब्सट्रैक्शन। सो दिस इज प्रैक्टिकल, हमारे को थोड़ा सा, चाहे वो गेम्स के थ्रू बोलिए या प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू, हमें करना पड़ेगा। नाउ 5G का आपने पूछा, जो विद टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोस थिंग, आई नो सी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगा, टेक्नोलॉजी हैज टू एस्पेक्ट। वन, इट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटीज, बट इट विल क्रिएट लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली। जैसे यूट्यूब एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, आप यूट्यूब पे क्या देखते हो, दैट विल डिसाइड कि वेयर यू गो बेसिकली। आप यूट्यूब पे मूवी के गाने देख सकते हो, या तो आप साइंटिफिक कुछ वीडियो देख सकते हो। नाउ अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग इनटू लुकिंग, मतलब आप मूवी के गाने देखने चाहिए, ऐसा नहीं कि मूवी का, बिल्कुल। बट देयर इज अ लिमिटेशन टू एनीथिंग एक्चुअली। आप कुछ भी चीज करो, जैसे आप शुगर खाते हो, अगर आप कम खाते हो तो इट विल गिव एनर्जी, आप ज्यादा खाते हो तो इट विल गिव डायबिटीज। तो सेम है कि आपको टेक्नोलॉजी जो है, टूल्स जो है, यू विल नीड टू यूज दैट टूल्स की फॉर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट ओनली टू एंटरटेन योर लाइफ। और आपको ये हर एक को सोचना चाहिए, ये इंडिविजुअल चॉइस होता है, क्योंकि देयर इज नो फिक्स फार्मूला, बट इंडिविजुअल चॉइस होता है बेसिकली, कि आप इसको यूज कैसे करते हो।
मैं हमेशा पूछता हूँ कि जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी तो आपके पेपर थे, न्यूज पेपर थे, न्यूज आउटलेट्स थे, तब भी आपको न्यूज पता चलता था। तब भी एक प्रोटेस्ट होता था, तब भी रिवॉल्यूशंस होते थे, तो कैसे होते थे? सो दीज आर टूल्स एक्चुअली, सो यू नीड टू कंसीडर देम एज अ टूल, दे आर नॉट अ एंड गोल। आज कोई एक टूल है, कल कोई और टूल होगा। So जी। what we need to do as a society or everybody as an individual कि how that tool will help me basically। जैसे गाड़ी है, बेसिकली आपके पास पहले पहले डीजल कार गाड़ी था, फिर पेट्रोल आया, फिर ईवी आया एक्सेट्रा। पर व्हाट दे आर अल्टीमेटली टूल टू टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे आर नॉट मोर देन दैट, दे आर नॉट लेस देन दैट। सो यू नीड टू ट्रीट देम सेम वे। सेम फोन है या कुछ भी है टेक्नोलॉजिकल, दे आर टूल विच विल मेक योर लाइफ बेटर रादर देन यूजिंग देम कि आप अपना आपका लाइफ नहीं है। नो सोशल मीडिया पोस्ट विल मेक योर लाइफ और ब्रेक योर लाइफ। आपको 2 साल के बाद लोग पीपल विल, मान लीजिए कुछ हुआ आपका सोच, नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट गेट इनटू दिस कि अरे कुछ पोस्ट हो गया, व्हाट विल हैपन टू माय लाइफ? वेल नथिंग विल हैपन टू योर लाइफ। अब 1 साल 6 महीने में सब लोग भूल जाएंगे। वंस यू गेट आउट, पास आउट ऑफ दैट फ्रॉम दैट, एवरीबॉडी फॉरगेट। बट इफ यू यूज दिस टेक्नोलॉजी एज अ टूल की टू कम्युनिकेट विद पीपल, लर्न फ्रॉम दैट टूल्स, आई थिंक इट कैन बी अ बेटर ये बेसिकली। बिल्कुल सर। सर, बच्चों की तरफ से एक प्रश्न है, कैन पैशन बी प्रोफेशन फॉर एवरीवन? इफ द आंसर इज नो, देन व्हाट शुड बी वैल्यूड मोर, पैशन और प्रोफेशन, सिंस इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन एंड आवर इकोनॉमिक नीड कांट बी ignored? See, I think we get confused. Basically, this is not either or choices. Basically, okay. Now, passion cannot always be a profession. Reason is simple. Yeah, profession you do to earn, and passion you do to entertain yourself. Okay. If you don't have passion in life, you are like a robot, basically. Okay. But in few people's case, two will get mixed actually. In few people's case, and most of the 99% people case, two are different things. I think you need a passion in life. It can be anything. It can be cooking. It can be dancing. It can be writing books, reading books, anything, anything. It can be anything. But why I don't want everybody to merging passion to the profession? Reason is that profession has its own practical realities basically. So I will give the basic example of my sector in education basically. Now, when you are passionate, suppose you are education passionate, so you will go and teach pre-student. So you will go and teach to the poorest of the poor student. But when you are taking social sector as a profession, it is not possible. Reason why it is not possible, you need to do the programs where donor want to do actually. So suppose you are getting a CSR fund now, maybe practically, suppose Bihar, there is some village which is the poorest village in India. But practically, if corporate doesn't have their periphery is not there or their practical work is not in that area, they will not work actually there. So if corporate is funding, they will fund maybe some in Maharashtra, which you think is a richest state and you need not to work. So that's where it goes actually. Now suppose again go to like suppose somebody want to singing. Again I have given the example. Now when you sing basically, maybe you will like to sing folk song, maybe you like sing maybe some western songs. But in India, if you want to make a singing as a profession, nobody will like a western songs actually. They will like some जो इंडिया में पॉपुलर सॉन्ग्स है, जो उस टाइम पे पॉपुलर है बेसिकली, मे बी सम ये पुष्पा का सॉन्ग पॉपुलर है, तो जो भी है, सो दे विल लाइक टू हियर दैट। नाउ इफ यू से नहीं नहीं मैं तो वही वेस्टर्न सॉन्ग गाऊंगा क्योंकि मेरा पैशन है, सो नोबडी पेज फॉर योर पैशन एक्चुअली। So that where I will say don't mix two things. One, passion is passion, profession is profession basically. Even if you are two merging, suppose you cricket example, take a cricket ka example, you want to become a cricketer. Now cricket is a passion, but you are suppose you are a cricket batsman. Now you hardly will bat actually. You need to do the maybe fielding 90% time you do the fielding basically. So you cannot say नहीं नहीं मेरा batting passion है तो मैं fielding नहीं करूंगा. Okay. So that's where you need to. So you cannot mix a passion and profession. First upon the, you need to keep your passion alive because that's keep you a human being. And profession में क्या होता है? Profession gives you lot of I think mental stress basically. क्योंकि आपको deliverables होते हैं, आपको अलग अलग, अब जैसे एग्जांपल है क्रिकेट, अगेन कम बैक टू क्रिकेट। क्रिकेट में अगर आपका पैशन था, आप कोई compete नहीं कर रहे हो किसी के साथ, बट वंस यू गो टू द एनी कम्पिटिटिव मैच, यू नीड टू कम्पीट, देयर इज अ प्रेशर एक्चुअली। ऑस्ट्रेलिया आपको स्लेजिंग करेगा, आपको कोई रिपोर्टर है आपके बारे में कुछ लिखेगा, दे विल राइट एवरीथिंग, सो दैट बिकम अ स्ट्रेस। सो आपका जो करियर का स्ट्रेस है वो दैट पैशन विल टेक केयर बेसिकली। सो डोंट ट्राई टू मिक्सअप, जहां पे मिक्सअप हो मतलब हो सकता है, पॉसिबल है, बट प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन आल्सो विदाउट पैशन आल्सो यू कैन एक्सेल इन प्रोफेशन, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि रीजन है प्रोफेशन विल गिव द मनी विच विल सपोर्ट यू टू डू द पैशन बेसिकली।
Now, money earning is very important because without money, you cannot survive, first of all thing. And second thing, without money, you will not even able to follow your passion. So basically क्या होता है कि बट प्रोफेशन को क्या करना पड़ता है, आपको आपको प्रोफेशन में भी थोड़ा पैशन डालना पड़ता है. So suppose you are an engineer and you are becoming a software engineer. So make it a your I will not say passion, but get into passionate about few things कि मैं coding कैसे हो. Either get passionate about your work or quality of work or consistency of something like that, which will value you in long term. So that's where few things you pick up from passion and put into your career. Few things from career pick up into and put into passion. So that both can grow and parallelly. And luck, if your lucks are good and you are a master, then I think both will merge in long term together basically. So balance is the key. You have to balance both passion and profession. Exactly. Sir, have you ever entertained the idea of writing a book or similar work in the near future? So maybe not in short term. See, I was past में मैं बहुत लिखता था. I was writing continuously. मैं पहले अपनी खुद की डायरी में लिखता था. Then I started writing on Blogspot, social media, and all those things. But slowly I realized कि your actions are more impactful than words actually. Okay, I'm not. I will not say कि books doesn't change the word basically. But generally, people who are ground, they are changing word more actually. जैसे घर घर में एक पिता होता है, वो पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर देता है, या एक मदर होती है अर्निंग मदर, वो पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर देती है रादर देन समबडी जो राइटिंग राइट कर दे. नाउ महाराष्ट्र में जैसे शिवाजी महाराज हुए, तो देयर आर लॉट ऑफ, जैसे एक पोएट थे, आई थिंक कवि, मैं उनका नाम भूल गया, तो ही हैज राइट पोएट्री, बट अल्टीमेटली देयर नीड अ शिवाजी महाराज जो उसको इम्प्लीमेंट करे. So right now I'm not thinking of, right now I'm focused on basically in building my social organization or contributing to the society, and I think that will create more impact. But in long term I have few plans in my mind. जैसे एक मैंने एनजीओ इसीलिए शुरू किया था कि जो मैं स्ट्रगल के थ्रू गया, एंड व्हाट आई रन प्रैक्टिकली कि भैया करियर कैसे बिल्टअप करना, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्टअप करना. सो लॉट ऑफ टाइम क्या था, ये मैं भी नहीं जानता था. इफ यू आस्क मी ऑल दिस क्वेश्चन 10 years बैक, तो मेरा पर्सपेक्टिव वाज वेरी डिफरेंट. बट 10-15 years में जो मैंने प्रैक्टिकली सीखा, तो यही हम एनजीओ में कर रहे हैं कि हाउ वी बिल्ड अ करियर ऑफ पीपल, कि उनको स्किल दे, उनको बिल्टअप करे, ये जो चीजें बोल रहे हैं. तो लॉन्ग टर्म में आई मे राइट व्यूज ऑन 2 topics. वन, हाउ टू बिल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ टू बिल्ड योर करियर, और 2 topics विच आर क्लोज टू माई हार्ट. बट इमीडिएट ऐसा कोई ये नहीं है, बिकॉज मैं आई एम ऑलरेडी शिफ्टिंग फ्रॉम राइटिंग टू डूइंग समथिंग. आई डोंट वांट टू राइट नाउ गो फ्रॉम डूइंग टू राइटिंग एक्चुअली. हो सकता है लॉन्ग टर्म में करूं, बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम. Sir, how do you maintain your level of enthusiasm and energy and proactiveness? मतलब राज क्या है, इतने एनर्जेटिक रहते हैं आप? हेलो, सॉरी आपका आवाज कट गया था. कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? Sir, how do you maintain your enthusiasm, energy and proactiveness? मतलब राज क्या है? What is your top secret? सो आई थिंक अगेन टॉप सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने बोला अभी तक. सी क्या होता है, जैसे आई लर्न वन थिंग इन माय लाइफ कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टू डूइंग एवरीथिंग. आपको रोज सुबह उठ के खुद को पुश करना होता है, बिकॉज योर टुडे विल डिफाइन योर टुमारो, टुमारो विल डिफाइन डे आफ्टर टुमारो, दैट्स योर लाइफ विल बिल्ट अप बेसिकली. तो मेनी टाइम क्या होता है कि मैंने जैसे बोला कि व्हेन आई गॉट इनटू सोशल सेक्टर, इट वाज माय पैशन बेसिकली. बिकॉज क्या होता है कि जब मैं अपने लाइफ में बढ़ रहा था, तो लॉट ऑफ पीपल कम एंड सपोर्ट टू मी. कोई हमारे टीचर थे जिन्होंने हमारा फीस भरा, कोई रिलेटिव्स थे जब जिन्होंने हमारा फीस भरा. देयर वाज ऑलवेज समबडी. हमारे पेरेंट थे जिन्होंने घर बेच दिया, खेती बेच दी. तो दे Sir, contributed to our life basically. Now once, yeah, so they contributed to our life, and that's where our life got built up. So it was, there was always ये कि society contribute to your life. And when I started my career into social sector, my goal was कि okay, let's contribute back to the society. It was a passion. Now passion when got into slowly it got into profession, and it got a structured organizational basically setup. Now when it got a structured organizational setup, there is always obviously there is a जैसे हम किसी को पिच करते रहते कोई कॉर्पोरेट को कि वी विल गेट फंड, और 4 साल के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं आता, तो यू गेट ये. बट क्या होता है कि इन अ लाइफ दिस ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यू नीड टू पुश योर सेल्फ, यू नीड टू लुक फॉर अ लार्जर थिंग्स कि मैं लार्जर क्या अचीवमेंट करना चाहता हूँ. जैसे मान लीजिए आपको पुणे से दिल्ली जाना है और यू आर डेली वॉकिंग, तो यू नीड टू कीप फोकस कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है. एंड बिफोर यू रीच टू दिल्ली, यू ऑलरेडी नीड टू चेंज द टारगेट कि मुझे जम्मू कश्मीर पहुंचना है.
So this once the targets are higher, generally you keep motivated. Second thing, self motivation is very important because आप book पढ़ सकते हो, आपको कोई speech दे सकता है, everything. But that doesn't long after 10, 15, 20 days के बाद वो ये नहीं होता है. तो आपको सेल्फ रोज खुद को बोलना पड़ता है कि आई विल बिल्ट अप माई ओन लाइफ, आई विल बिल्ट अप माई ओन लाइफ, आई विल बिल्ट अप माई ओन लाइफ. तो आप जब सुबह भी उठते हो तो आप पुश करते हो अपने आप को, आप सोने से पहले पुश करते हो. आप आधा घंटा ठीक है और पढ़ लो, rather than looking at seeing some movie, let's see me YouTube video which is relevant to my or I will see a movie which is relevant to my career, relevant to my built up to something contribute to me. अगर आप ये थोड़ा थॉट प्रोसेस रखते हो तो बेसिकली आपका क्या हो जाता है कि रादर देन आप जैसे कहीं पे मान लीजिए किसी दोस्त को मिलने जा रहे हो, इफ इज वेरी क्लोज टू फ्रेंड टू यू एंड ही स्टेज 100 किलोमीटर अवे, और रोड चाहे कितना भी खराब हो तो आपको ध्यान में नहीं आता है क्योंकि आपको उस दोस्त को मिलना है, मे बी आपको सबका कुछ तो भी अच्छा खाना है. तो आप क्या करते हो, वो सब भूल जाते हो आप जो एफर्ट्स ले रहे हैं. सेम आपका लाइफ में भी होता है. यू नीड टू फोकस ऑन समथिंग बिग. सपोज यू आर स्टूडेंट, फोकस कि ओके आफ्टर डिग्री मुझे क्या अचीव करना है. तो क्या होगा कि यू विल फॉरगेट डे टू डे, मे बी दिस टीचर इज नॉट गुड, दिस बुक इज नॉट गुड, यू विल फॉरगेट दोस थिंग बिकॉज दिस अ लार्जर टारगेट. जब आपका लार्जर टारगेट नहीं होता तो आपको क्या हो जाता है, अरे यार मैं क्यों कर रहा हूँ. एंड दैट्स व्हेयर लॉट ऑफ पीपल से कि यू नीड टू फोकस ऑन व्हाई रादर देन व्हाट और हाउ. बेसिकली फोकस ऑन व्हाई कि हम क्यों कर रहे हैं. इफ आई एम गोइंग टू सम क्लास, इफ आई एम बिकमिंग डॉक्टर एंड टीचर इंजीनियर, मैं क्यों बन रहा हूँ ना. डिग्री कैन नॉट बी मोटिवेशन क्योंकि डिग्री तो आपको प्रिंट करके भी मिल सकता है. सो दैट्स यू नीड टू फिगर बिल्कुल। आउट व्हाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ. वंस दैट एंड दैट्स आई थिंक मैंने जैसे बोला था कि पैशन से कुछ चीजें उठाइए. तो मेक योर करियर एज अ पैशन. जब आपको पैशन रहेगा तो डेली यू विल पुश योरसेल्फ कि ठीक है भैया मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ, थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है थक गया हूँ नहीं पसंद है, देन आल्सो आई पुश. I will go to that extra meeting. I will pick up the phone, call that extra maybe senior somebody, drop that extra message. तो वो आपको पुश करते रहता है. Once you have the larger target, I think it's easier to push you and stay energetic, basically. सो सर, आपने हमें अपना समय दिया, कीमती समय, और इसके लिए मैं और हमारी संस्था आभारी हैं। और भविष्य में हम और भी इंटरव्यू की अपेक्षा करते हैं कि और भी इंटरव्यू हम साथ करें। आप अपना अगर समय दे पाए, कीमती समय। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। Yeah, thanks for inviting me. Thanks, Rishabh. It was a good to interact with you. I think your questions was very relevant to the student, and thanks for inviting me. हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।